میں کووڈ کی مہاماری کے بعد عید کی نماز خوش اسلوبی کے ساتھ کی گئی ادا۔ نماز کے اہتمام کے بعد لوگوں نے جوش و خروش سے ایک دوسرے کا کیا استقبال۔ ایل جی جموں کشمیر منوج سینا نے پہلگام ایک بیس کیمپ کا کیا دورہ۔ امرناتھ یاترا کے لوگوں اور دیگر یاتریوں سے کی ملاقات۔ امرناتھ یاترا میں ہوئے حادثات کو لے کر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس منعقد۔ درگاہ حضرت بال میں ہزاروں زائرین کے ساتھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور درخشاں اندرابی نے نماز ادا کی۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں میں بھی عید الاضحیٰ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ پونچھ راجوری میں بھی موسم خراب کے باعث مساجدوں میں ادا کی گئی عید الاضحیٰ۔ ناظرین، خبریں اب تفصیل سے۔ مینڈر ڈکی پل کے قریب ندی میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے۔ ریسکیو ٹیم نے ایک کو زندہ بچا لیا، جس میں اظہر عمر جس کی 9 سال ہے، لیکن 2 کمسن بچیاں ریفت بی عمر 11 سال اور عالیہ خان عمر 9 سال جاں بحق ہو گئی۔ ایس ڈی ایم مینڈر جہانگیر خان نے بتایا کہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا، جس میں ایک لڑکے کو اسی دن بچا لیا گیا، تاہم 2 دیگر لڑکیوں کی تلاش جاری ہے اور ان کی لاش کو ریسکیو ٹیم نے آج نکال لیا ہے۔ قانونی کارروائی کے بعد لواحقین کے حوالے ان کی لاش کر دی گئی ہے۔ میرا گاؤں کا تحصیل مینڈر میں، اور شام کوئی تقریباً 6:15 بجے کوئی یہیں پاس کے محلے کے کوئی 10 سے 12 بچے یہاں دریا میں نہا رہے تھے۔ تو جیسے کہ رات کو کافی ہیوی رین ہوئی تھی، تو آج پانی زیادہ تھا دریا میں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ بچے جب یہاں پہ نہا رہے تھے تو ایک دم سے 2 بچیاں جو ہیں وہ پانی میں ڈوب گئی، اور جو ان کا تیسرا بھائی تھا وہ بھی ڈوب رہا تھا، لیکن اچانک ساتھ ہی کے گاؤں کے ایک لڑکے نے اس کو بچا لیا۔ 2 بچی جو ہے اس پانی میں یہاں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ اس کے جو ہی ہمیں خبر ملی، اس کے ساتھ ہم نے ایک جوائنٹ آپریشن چلایا، جس میں پولیس تھی، ہماری آرمی تھی اور ہمارے لوکل جو خاص کرتے۔ تو رات کو بہت کوشش کی ہم نے، رات کو 2 بجے تک ہم نے یہ آپریشن کو چلایا، سرچ آپریشن، بٹ ہم کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ یہاں پہ بڑی گہرائی ہے پانی میں بھی، اور پھر رات کو ہمیں کال آف کرنا پڑا آپریشن، اور صبح 7 بجے سے یہ آپریشن جو ہے چل رہا تھا۔ تو مین وائل تھوڑا سا پانی پیچھے سے میں بھی کہیں بارش کی وجہ سے یا پانی تو زیادہ آ گیا، اور لگ بھگ 9 بجے کے قریب جو ہے یہ باڈیز جو ہیں یہاں سے پانی دریا میں آگے بہہ گئی۔ پانی بہت کرنٹ تیز تھے، فلو تیز تھا پانی کا، تو یہ چھجلا کے قریب وہاں سے یہ باڈیز جو ہے ریٹریو کی گئی۔ تو یہ قریب 15 گھنٹے کے بعد جو ہے یہ بچی جو ہے ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے ریٹریو کی گئی، اور آفٹر لیگل فارمیلٹیز جو ڈیڈ باڈیز ہیں بچیوں کے لواحقین کو جو ہیں وہ سونپ دی۔ گزشتہ روز مینڈر میں ڈوبی ہوئی 2 کمسن بچیوں کی لاش کو برآمد کر کے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر سب ضلع ہسپتال سے ایمبولینس کے ذریعے ان لاشوں کو ان کے اہل خانہ تک پہنچا دیا گیا۔ اس سلسلے میں ضلع مجسٹریٹ جہانگیر خان نے مزید تفصیلات بتائیں۔ یہاں پہ 2 بچی جو ہے اس پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ اس کے جو ہی ہمیں خبر ملی، اس کے ساتھ ہم نے ایک جوائنٹ آپریشن چلایا، جس میں پولیس تھی، ہماری آرمی تھی اور ہمارے لوکل جو خاص کرتے۔ تو رات کو بہت کوشش کی ہم نے، رات کو 2 بجے تک ہم نے یہ آپریشن کو چلایا، سرچ آپریشن، بٹ ہم کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ یہاں پہ بڑی گہرائی ہے پانی میں بھی، اور پھر رات کو ہمیں کال آف کرنا پڑا آپریشن، اور صبح 7 بجے سے یہ آپریشن جو ہے چل رہا تھا۔ تو مین وائل تھوڑا سا پانی پیچھے سے میں بھی کہیں بارش کی وجہ سے یا پانی تو زیادہ آ گیا، اور لگ بھگ 9 بجے کے قریب جو ہے یہ باڈیز جو ہیں یہاں سے پانی دریا میں آگے بہہ گئی۔ پانی بہت کرنٹ تیز تھے، فلو تیز تھا پانی کا، تو یہ چھجلا کے قریب وہاں سے یہ باڈیز جو ہے ریٹریو کی گئی۔ تو یہ قریب 15 گھنٹے کے بعد جو ہے یہ بچی جو ہے ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے ریٹریو کی گئی، اور آفٹر لیگل فارمیلٹیز جو ڈیڈ باڈیز ہیں بچیوں کے لواحقین کو جو ہیں وہ سونپ دی۔ جنوبی ضلع اننت ناگ کے بجباڑہ میں کووڈ کی مہاماری کے بعد عید کی نماز ادا کی گئی۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز میں شرکت کی۔ اس موقع پر مفتی ضیاء الحق نے عید القربانی پر روشنی ڈالی۔
दूसरी तरफ मंजनो नंबल अनंतनाग में भी ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के अहतमाम के बाद लोगों ने जोश व खरोश से एक दूसरे का इस्तकबाल किया और मुल्क में अमन शांति की भरपूर दुआएं की गई। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों और इंतजामिया ने मौसर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हम इन लोगों से ताज़ियत करते हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रास्ते की मुरम्मत के साथ यात्रा को दोबारा शुरू करने की कोशिशें जारी हैं। यात्री आए, हम इन्हें तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम में एक बेस कैंप का दौरा किया और अमरनाथ यात्रा के लोगों और दीगर यात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जो लोग अभी बालटाल बेस कैंप में हैं इनको अच्छी सहूलतें दी जा सकें। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान और आर्मी ने मिलकर लोगों को रेस्क्यू किया है और आर्मी लगातार यात्रियों के लिए मदद फराहम कर रही है। आज माफ हो गया तो चलो ठीक है, सबका आज माफ कर। मैडम खड़े होने के लिए तो जगह नहीं। चलो हट जाओ, एक मिनट ठीक है, बताएं, एक मिनट छोड़ दो, कैसे पूछें? छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। टू फ्रेम छोड़ दो। और अभी प्रकृति विज्ञान पर भारी है, टेरेन बहुत दुर्गम है, लेकिन जिस तरह से हमारे सीएपीएफ के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, पूरे प्रशासन ने और आर्मी के लोगों ने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया और निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। कुछ बहुत ही प्रिय भक्तजन हमारे बीच नहीं रहे, हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, दुखद हादसा रहा, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और वहाँ रेस्क्यू के साथ साथ फिर से यात्रा बहाल हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। कहाँ तक पहुंचा है सर? क्योंकि आपने कल भी एक मोटे तौर पर मैं समझता हूं कि एक जगह एक डेब्रिस है, उसको छोड़ करके सारे ऑपरेशन पूरे कर लिए गए हैं। रास्ते को ठीक करने का काम तेज गति से हो रहा है और वो मैं उम्मीद करता हूं कि आज पूरा हो जाएगा। सर यात्री एक बार काम पूरा हो जाएगा, उसकी सुरक्षा की जाँच करा करके फिर यात्रा हम लोग शुरू करेंगे। व्यक्तिगत मिला हूँ और मुझे यात्रियों का जो फीडबैक है मुझे लगता है मुझसे बेहतर किसी के पास नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करिए। आखिर में जो यात्री आने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहिए? उनसे मेरा आग्रह है कि वो आवें, हम पूरी शिद्दत से उनके इंतजाम में लगे हैं और हर कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी। जम्मू व कश्मीर बालटाल अमरनाथ के हालिया बादल फटने के पेश नज़र हिंदुस्तानी फौज ने इमदादी कार्रवाइयों और रास्ते की देखभाल के अमल को तेज करने के लिए अहम रेस्क्यू सामान मुहैया किया है, जिसमें 16 लोगों की जानें चली गई हैं जबकि मुतअद्दिद लापता हैं। श्रीनगर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। ईद उल अज़हा इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने ज़ी उल हज्जा की 10 तारीख को होती है। कश्मीर में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हजरत बल के मज़ार पर सुबह 10 बजे मौजूद था, जहां हजारों लोगों की नमाज ईद में शिरकत और इस्लाम की तालीमात पर खुतबा दिया गया। इस मौके पर कई लोगों ने मीडिया से बात करते हुए ईद की खुशी का इजहार किया और तमाम लोगों ने हाथ उठाकर मुल्क में शांति और भाईचारगी के लिए दुआएं मांगी। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahi turidun, fama zannukum bi Rabbil Alamin. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, arham bunyanan falqu fil jahim.
बड़ा दिन होता है, खासकर मुसलमानों के लिए कुर्बानी का दिन भी है। जो गरीबों का ख्याल रखना है, उनकी मावनत करनी है, उनको भी याद करना है। उस हवाले से तो ये बहुत इधर मशहूर कस्बा चिराग शरीफ में भी ईद की नमाज सुबह 9:30 बजे अदा की गई। मौलाना अमीरुद्दीन शाह ने फलसफा ईद और मौलवी गुलाम हुसैन पर रोशनी डाली। वाज़ेह रहे कि चिराग शरीफ में भी बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। अमरनाथ यात्रा में हुए हादसात को लेकर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। उन्होंने जारी अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने से यात्रियों की जानों के ज़ाया पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती है कि बाल्टाल में बादल फटने से यात्रियों की मौत हुई है और गमजदा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि उन्होंने बाल्टाल के रास्ते पर तैनात तमाम अस्पतालों और अमले से अपील की कि चौकस रहें और तैयार मोड रहें और जख्मी यात्रियों के इलाज के लिए तमाम सहूलियात तैयार रखें। कल जो ही ये न्यूज़ आई अच्छा ये न्यूज़ आई कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है अमरनाथ जी होली केव के पास, तो इमीडिएटली हमने क्या किया, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस से हमने एक सर्कुलर निकाला कि जो भी हमारा साउथ साइड से या नॉर्थ साइड से जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से हमने एम्बुलेंसेस को मोबिलाइज़ किया, मशीनरी को मोबिलाइज़ किया और जो मैन पावर उसको मोबिलाइज़ किया टुवर्ड्स बाल्तल। और ये साउथ कश्मीर से हमने जो भी साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है, पुलवामा है, शुपिया है, तो वहाँ से भी हमने मोबिलाइज़ किया है, जिसमें मैन पावर भी, मशीनरी भी, इक्विपमेंट भी, और उसके अलावा जो भी कोई चीज़ ये था तो हमने हर एक को अलर्ट पे कर दिया ताकि सारे लोग वहाँ पहलगाम रूट और इस रूट पे आ जाए। और मैं खुद ही वहाँ गया और वहाँ जो हमने देखा कि रात का ये कोई 6 बजे के करीब ये सानिया जो आया वहाँ पेश आया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारे लोग हर एक जगह पे, चाहे वो बालतल से लेके पूरा होली केव तक जो भी हमारे सेंटर्स थे, हम बिल्कुल उनके टच में थे। वहाँ हमारे पास दवाई थी, डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, और हर एक इसी में जुड़ा कि जो भी कोई ज़ख्मी आए, जो भी कोई उनके पास आए, उनका ट्रीटमेंट करे। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में क्या किया हमने कि अर्ली मॉर्निंग में गवर्नमेंट ने जैसे एलजी साहब ने हर एक को डायरेक्शंस दिए कि वहाँ एवेक्यूएशन स्टार्ट हो गई और हमने एवेक्यूएशन स्टार्ट करी। वहाँ हमने क्या किया कि 38 जो इंजर्ड वहाँ से थे वो हमने बालतल में उनको रेफ़र किया, और बाकी जो 6 क्रिटिकली इल थे तो उनको पहले उनको हमने सिक्किम जो जिनकी मौतें हुई थी उनको हमने फिर श्रीनगर शिफ्ट किया। इसके जो भी हमारे लोग थे, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक ने ये एक साथ मिल के ये काम किया और इसको अंजाम दिया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो भी मेडिकल स्टाफ वहाँ पे था। फिर मैं पर्सनली होली के भी गया, आज वहाँ भी मैंने नज़र दी, वहाँ हमने अपने स्टाफ को भी देखा, जो डॉक्टर्स आउटसाइड से भी आए थे, कहीं बड़े सारे स्टेट से और बड़े यूटी से आए थे वहाँ पे, वो बिल्कुल वहाँ ही तैनात थे अपनी ड्यूटी पे। और बाकी जो हमने जो भी लोग वहाँ आए, जिस सेंटर में आए, हालांकि जो मेजर इंजरीज़ वो तो मैंने आपको बोल दिया कि 38 जो लोग थे उनको हमने बालतल में उनको एडमिट किया, ठीक किया, वो सारे स्टेबल हैं। उसके बाद जो 6 है जो क्रिटिकल थे थोड़े से, उनको हमने सिक्किम में जो भेजा, आज मेरी डायरेक्टर साहब से बात हो गई, वो भी बिल्कुल स्टेबल है। और जो छोटी कुछ आई कि उसमें भी कुछ 50-60 लोग हैं जिनको डिफरेंट जगह पे वहाँ ट्रीटमेंट मिला। टोटल जो है अभी तक 16 जो जाने नुकसान हुआ है उधर, इसका हमें पूरा गम है, पूरा ये है कि नहीं होना चाहिए था, बट खुदा की मर्जी थी। तो डॉक्टर साहब पिछली बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और उसमें आप बिल्कुल सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारी दवाई, हमारा ऑक्सीजन, हमारा मैन पावर, हमारा मटेरियल, किसी चीज़ की भी कमी नहीं रही। और वहाँ मैं पर्सनली भी गया हर एक 2-4 सेंटर्स पे। मैं पहले बालतल में था, पूरा कल से ही लगे हुए, और उसके बाद
मैं होली केव तक गया और हर एक सेंटर में हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो डिस्पोजेबल्स हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो इवन कॉटन हो, बैंडेज हो या ऑक्सीजन हो, किसी चीज़ की किल्लत नहीं हुई थी कि हमने ऑलरेडी एलजी साहब की डायरेक्शंस पे हमने स्टॉक्स वहाँ मौजूद रखे थे, उसकी वजह से कोई हमें परेशानी नहीं हुई। बताइए कि लापता कितनी अशखास है कभी? नहीं, उसका तो अभी हमें मुझे कोई उसका अंदाज़ा नहीं है, उस पर अभी भी काम चल रहा है। वहाँ जब मैंने देखा कि मौसम ठीक हो गया था, वहाँ थोड़ी सी और एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी, कुछ रेस्टोरेशन काम भी चल रहा था। बाकी जो हमारे लोग थे वो बिल्कुल जो मेडिकल रिलेटेड थे वो सारे से। आपके एतबार से? नहीं, मुझे लगता है कि आज कल के दिन में इंशाल्लाह सारा ठीक हो जाएगा, एक आधा दिन और लग सकता है और चालू हो जाएगा। उधर जिला पुलवामा में भी ईद की नमाज भारी तादाद में लोगों ने अदा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए लोगों ने अपनी खुशियां जाहिर की और बाद नमाज ईद मीडिया से बात करते हुए लोगों ने कहा कि अल्लाह का लाख शुक्र है जिसने हमें एक साथ इकट्ठा होकर ईद की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाई है। उन्होंने कहा कि हम दुआ गो हैं कि मुसलमान ऐसे ही अपने नबी की सुन्नत पर चलते रहें। ईद उसी तरीके से मनानी चाहिए जिस तरीके से सुन्नत है, जिस तरीके से जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन कौलन फ़अलन उसका मुज़ाहरा किया है और हमारे लिए क़यामत एक बावक़ार सुन्नत छोड़ी है। उस सुन्नत को हमें हरगिज़ दामन से नहीं छोड़ना। अगर हम उसी तरीके पर हज कर पाए, कुर्बानियाँ कर पाए, नमाज़ें अपनी अदा की तो समझ लीजिए ये अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाएंगी। अगर इसमें खुलूस नहीं होगा, लिल्लाहियत नहीं होगी और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत शामिल न हो तो चाहे हमारी ये इबादत कितनी ही बड़ी हो ये इंदल्लाह कबूल होने वाली नहीं है। शर्त एक ही है कि हमें इत्तबा करना चाहिए हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ पेश करने में भी, हज अदा करने में भी और बाकी जो मामलात हैं हमारे खुसूसन इबादत से मुतलिक वो वही रंग पानी चाहिए जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन इबादत पर रंग चढ़ा है। इसी पर हमारी कामयाबी है दुनियावी और उखरवी। वबरकातुहू बचुस अन्य तरफ मुबारक करान आलमी इस्लामस बिलखुसूस बिलउमूम बिलखुसूस पन्निस पुलवान के इमन मुक्तदीन मुरीदन तमाम लुकन मुबारक करान। अत सूम अर्ज कि ईज पैगाम युतु तुह नंबर 8 कि जन बच्चे करू हिदायत बेहतरीन हिदायत ताकि जन ड्रग्सन कुन लगित गलत कारन कुन लगित बेहयाई कुन लगित चाहे लड़के या लड़की बाज नश गोच जित तुह मेन पैगाम दोम पान वन थी इतिहाद क्या बतसमु बेहबलिल्लाहि जमीअ बेशु ईज पैगाम तो यह एक ही सब में खड़े हैं महमूद और अयाज न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज क्या मसलक क्रोन वजुल खास क्रिएट कलर क्या बेहतरीन अजु पैगाम तुम करू यह कुन यकजा रूजू इतिहाद करू इतफाक करू अम सु दुनियाई मामलात मज कामयाब उखरवी मामलात मज कामयाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, जिला गांदरबल में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। अगरचे ख़राब मौसम की वजह से ईदगाह में नमाज ईद नहीं अदा की गई, लेकिन जामे मस्जिद दोरू हामा में मुसलमानों की बड़ी तादाद ईद की नमाज अदा करने के लिए निकली। नमाज के अहतमाम के बाद लोगों ने जोश व खरोश से एक दूसरे का इस्तकबाल किया। खुतबा के दौरान नमाज ईद की इमामत करने वाले इमाम ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो ईद सादगी के साथ मनाएं और मुख्तलिफ यतीम खानों और हैराती इदारों के लिए दिल खोल कर अतायात दें। जावेद अहमद मखदूम है और मैं मस्जिद हमजा गांदरबल की से बहसत इमामत फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। रहा आपके सवाल का ताल्लुक़ आज ईद उल अज़हा पूरी दुनिया में जोश व खरोश के साथ मनाई जाती है और हमारी कश्मीर में भी आज ईद उल अज़हा बड़ी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। तो आज
करीबन पिछले 2-3 साल के बाद आज हमने एक साथ नमाज अदा की है। तो अगर देखा जाए कहीं कहीं हमने ईदगाहों में भी नमाज अदा की है, मौसमी हालात की वजह से तो मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब आज खुशखरम नज़र आ रहे हैं और दुआ हमारे यही दुआ है हम अल्लाह से कि ये ईद पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन, शांति और खुशहाली का पैगाम लेकर आए। और मैं अपनी तरफ से ज़िले गांधरबल के तमाम बाशूर आवाम को दिल के अमीर गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ। दूसरी जानिब दरगाह हजरत बाल में हजारों ज़ायरीन ने नमाज ईद अदा की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और दरख्शां इंद्राबी ने असर शरीफ दरगाह हजरत बाल श्रीनगर में बाजुमात नमाज अदा की। नमाज के अख्तमाम के बाद लोगों ने जोश व खरोश से एक दूसरे का इस्तकबाल किया। ईद मुबारक और अल्लाह करे कि ये ईद हम सब के लिए खुशहाली लाए, बरकतें लाए और हमें इन मुश्किलों से निकाले। क्योंकि ईद उल अज़हा तो खुशियों का त्यौहार है हमारे लिए। आज के दिन तो सैक्रिफाइसेस होती हैं और हम कुर्बानी दे देते हैं। हज अकबर के बाद ये ईद आई है। अब मौसम भी सुहाना हो गया, नमाज भी हो गई हज़रत बल में, सबों ने ईद की नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला सबों को खुशी दे। हमारा तो यही रहेगा कि अल्लाह करे कि हम सबों को नियति से एक दूसरे के गम में, खुशी में शरीक होने का मौका दे और अल्लाह करे ये ईद हमारे लिए अमन, खुशहाली और तरक्की लेके आए। नाजरीन, मुकामी लोगों ने ईद उल अज़हा के मौके पर दरगाह हजरत बाल श्रीनगर में मीडिया से बात की। कुछ नमाजियों ने नमाज गायब होने के लिए मज़ार इंतज़ामिया की बद इंतज़ामी और तसल्लुत का इल्ज़ाम लगाया। बेहतरीन थे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो बारिश ऐन वक्त पर पड़ी उसकी वजह से थोड़ी हलचल हो गई। यहाँ पर लोगों की तादाद कम हो गई। लोगों ने बेहतर समझा कि अपनी मुकामी मस्जिदों में ही नमाज़ पढ़ी, इसलिए यहाँ आज इज्तिमा बहुत कम था। तो इमाम साहब ने भी दुआ की पूरे कश्मीर के लिए, पूरे आलमी इस्लाम के लिए। जो आजकल हालात है पूरे मुसलमानों के लिए, पूरे कंट्रीज़ जो इस्लामी ममालिक है, हर इस्लामी ममालिक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके मुतल्लिक़ इमाम साहब ने खुसूसी दुआ की। आज ईद के हवाले से, ख़ासकर कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से दुआ की कि पूरा ये जम्मू कश्मीर हालात बेहतर से बेहतर हो, लोग की कारोबारी हालत बेहतर हो। इस वक्त लोगों की हालात कारोबारी हिसाब से बहुत कमज़ोर पड़ी हुई है, इसलिए खुसूसी दुआ उसके लिए किया गया और बेरोज़गारों के लिए दुआ की गई। रूदन कर प्रॉब्लम वह 10 मिनट हेकान इंतजाम ठहरित यमन अस्तान शरीफ मज नेरुन यह क्या घर यह गई ना नाइंसाफी मुसलमान पे। यह कुछ कानून तो यमो कर रसूल खुदा सदिस कानूनस गैर अदूली, यह कुछ इंतजामिया।
SMC के मेयर श्रीनगर जुनैद अजीम मट्टू ने दरगाह हजरत बाल श्रीनगर में नमाज अदा की और ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ईद की ढेर सारी तमाम अहल मुस्लिम को बिलखसूस जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद और लोगों से अपील की जो गरीब हैं इनकी भरपूर मदद की जाए। ईद की ढेर सारी दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद अहले इस्लाम को और बिलखसूस जम्मू और कश्मीर और श्रीनगर के अवाम को। लोगों से ये गुजारिश इल्तिजा रहेगी कि हस्ब मामूल जो मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उनका ख्याल रखें, सादगी के साथ जो ईद का तकद्दुस है उसको मानें और मनाएं और अमन और खुशहाली के लिए रियासत की, मुल्क की पूरी दुआ करें। पिछली ईद उल फितर थी, वो भी 2 साल बाद वैसी मनाई गई और आज की ईद उल अज़हा आपका सही कहना है 2 साल बाद ऐसी बात बनाई जाए। लोगों से गुजारिश यही रहेगी कि कुछ बुनियादी एहतियात कायम रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको ऐसी तरबियत दे कि ईद का जो तकद्दुस है वो ईद का तकद्दुस बरकरार रहे और जो ईद मनाने के, ईद को ऑब्ज़र्व करने के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो रुकन हैं, उनका ख्याल रखा जाए। एक वार्ड में ये सर्विस दी है। बदकिस्मती से पिछली ईद भी ये देखा गया, कभी देखा जाता है जो कुर्बानी के जानवर होते हैं उनके जो वेस्ट होते हैं या हाइड होती है उनको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका भी बड़ा वाज़ेह किया गया है। उसका तकद्दुस भी बहुत अहम है। कहीं पे वो ड्रेनों में से हमने निकाला है, कहीं पे डंपस्टर से निकाला है, तो लोगों से गुजारिश है वो ना करें। हर एक वार्ड में ये इंतज़ाम किया गया है, हर एक वार्ड ऑफिसर के पास इंतज़ाम रखा गया है कि वो इसमें आपकी हिमायत करें। पूरे मुल्क के साथ साथ आज जम्मू में भी ईद उल अज़हा तकरीब बड़े जोश व खरोश और जज्बे के साथ मनाई गई। सुबह जम्मू में सबसे बड़ी तकरीब जम्मू में मुनक्किद हुई, जहां हज़ारों ने तादाद ने फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। दूसरी तरफ खिता चनाब के साथ साथ पीर पंजाल में भी ईद उल अज़हा तकरीब पुरजोश के साथ मनाई गई, जिसके बाद लोगों ने जम्मू कश्मीर अमन व अमान और भाईचारे और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की। जानवर के खुर सलाम ने देखा कि सारे फरिश्तों में कोहराम मचाया। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम कर इताअत फरमा बढ़ गई। इस मुबारक दिन में मैं तमाम अहले इस्लाम को, जम्मू कश्मीर के तमाम मुसलमानों को ईद मुबारकबाद पेश करता हूं और जो हाजी साहिबान आज हज करने गए हैं और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि उनका हज कबूल हो जाए। जो आज बकरा ईद है, जो कुर्बानी देते हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आज इस मुबारक दिन में हमारे मुल्क में लोगों को खुशियाँ दे और खुसूसन जो हमारे जम्मू कश्मीर में अमन व अमान कायम हो, खुशहाली आए। मैं ये दुआ करता हूँ परवरदिगार इस ईद को हमारे इलाके के लिए, हमारी रियासत के लिए, बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए खुशहाली का, अमन का, सुकून का, इत्मीनान का ज़रिया बनाए। मिल्लत इस्लामिया के लिए ईद उल अज़हा के मौके पे ईद मुबारक पेश करता हूँ और अल्लाह से यही दुआ मांगता हूँ कि ये ईद उल अज़हा पूरे मुल्क, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अमन अमान का बाइस बने और हमें जो सबक इससे मिलता है भाईचारे का, तौहीद का और आपस में हमदर्दी का, फरमाबरदारियों का, उस पे अल्लाह हमें चलने की तौफीक दे। पूरे मुल्क के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी ईद उल अज़हा का त्यौहार जोश खरोश और जज्बे के साथ मनाया गया। सुबह जम्मू में सबसे बड़ी तकरीब जम्मू में मुनक्किद हुई, जहां हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह में अदा की। मौसम भी साजगार रहा। ताहम देखा जाए तो मुख्तलिफ जो रज़ाकार तंजीमें हैं, सियासी व समाजी कारकुनान हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं भी की। जो मुफ्ती साहिबान हैं, उन्होंने भी नमाज के बाद जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और भाईचारे को लेकर दुआएं दी।
صوبہ جموں سے فور ٹی وی کے لیے میر مدثر۔ پونچھ میں اگرچہ خراب موسم کی وجہ سے مرکزی عیدگاہ میں نماز ادا نہیں کی جا سکی، تاہم تمام مساجدوں میں مقررہ اوقات کے مطابق نماز عید ادا کی گئی اور سبھی مذاہب کے لوگوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی اور ملک میں بھائی چارگی کے لیے دعا کی۔ آپ سنت اعلان کیا تھا اور آپ لوگوں نے بھی کافی اسی کے اندر ہم سب ہاتھ بٹائیں۔ احسان ہے کہ رب قدیر نے عرصہ دراز کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی، چونکہ ہمارے پونچھ کی مثال رہی ہے کہ یہاں تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ جو بھائی چارگی اور اتحاد کی مثال کام کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ میں پوری ملک اور پوری ریاست کے عوام کو آج کے اس بڑے دن پہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا جو ایک بہت بڑی مثال پیش کی تھی، ہزاروں سالوں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ یہ قربانی ہے انسان کے تئیں، انسانیت کے تئیں، اور اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ میں اپنے تمام مسلمانوں کو اور پورے بھارت کے 135 کروڑ لوگوں کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ خصوصی طور ڈسٹرکٹ پونچھ کے تمام لوگوں کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آج تک ہر تہوار میں غیر مسلم نے مسلمانوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور شکریہ سبھی تہوار مل کے کرتے ہیں۔ اس موقع پہ میں آپ پونچھ کے تمام حضرات کو عید مبارک دیتا ہوں۔ ملک بھر کے ساتھ ساتھ راجوری میں بھی عید کی نماز ادا کی گئی۔ یہاں پر بھی موسم خراب ہونے کی وجہ سے تمام لوگوں نے اپنے قریبی مساجدوں میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ سارے راجوری واسیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک پراسپرس، ہیپی اور بہت خوشحال عید سب کو وش کرتا ہوں، اور سب لوگ پیس اور ہارمنی سے رہیں اور راجوری کی ترقی ہو۔ میں یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج اپنی دعاؤں میں آپ یہ چیز آپ مانگیں۔ سب شہریوں کو شاہد کمار سے مبارک کا پیغام۔ یہ ہماری تمنا ہے کہ جو ہے کہ خوش سب کی خوشیاں لے کے آئے، اور ڈھیر ساری خوشیاں اور کامیابیاں جو ہیں وہ لوگوں کو ملیں، اور امن اور خوشحالی جو ہے بڑی۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ کولگام میں بھی ہزاروں افراد نے عید کی نماز ادا کی۔ ضلع کولگام کے ہزاروں مسلمانوں نے اتوار کی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ عیدگاہ کولگام اور ضلع کے دیگر مقامات پر نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے، جہاں پر لوگوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ایک دوسرے کا استقبال کیا اور ڈھیر ساری خوشیاں ظاہر کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام برادری سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ عید کے موقع پر اپنے اپنے دعاؤں میں اس کشمیر کو یاد رکھے، بالخصوص بھائی چارگی کا خاص خیال رکھے، چونکہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، المسلم من لسانی و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ دونوں سے سلامت رہے، خوشحال رہے، جو خوشحال زندگی ہے۔ عید کا موقع بھی یہی ہے اور عید کا پیغام بھی یہی ہے کہ سلامتی، خوشحالی اور بھائی چارگی، اس کا خاص سے یہ تمام ہم علماء سے بھی التجا کرتے ہیں، فقہا سے التجا کرتے ہیں، عام دوستوں سے بھی التجا کرتے ہیں کہ اس کشمیر کے لیے جو اس بڑے دن کے لیے بڑے دن میں دعا کرے۔ باقی جزاک اللہ۔ ادھر ہندواڑہ قصبہ میں عید الاضحیٰ کی نماز دارالبدکوٹ مسجد میں ادا کی گئی، جہاں نماز کی ادائیگی کے لیے ہزاروں افراد جمع ہوئے اور نماز عید ادا کی۔
زندگی ساری محنت کرے اللہ دین قدر قبول ساری صغیر کا دین قدر قبول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اللہ کی ہر نعمت پر شکر کرنا واجب بنتا ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے. نماز عید الحمدللہ بڑے اطمینان سے ہم نے ادا کی. موسم بڑا اچھا رہا. سویرے سویرے حالات کچھ خراب سے لگ رہے تھے موسمی اعتبار سے, لیکن اللہ نے بڑا فضل کیا, بڑا کرم کیا, موسمی حالات ٹھیک ہو گئے. الحمدللہ ہم نے بڑے اطمینان کے ساتھ آج مرکزی عیدگاہ ہندوارہ میں نماز عید ہزاروں لوگوں نے الحمدللہ آپ نے دیکھا بڑے اطمینان کے ساتھ سب نے نماز ادا کی. اور پھر ایک دوسرا شکر ہمیں یہ واجب بنتا ہے کہ آج تقریباً ہم نے 3 سال کے بعد اس عیدگاہ میں نماز عید ادا کی. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. بیچ میں بڑے کٹھن حالات آئے, کورونا وائرس کا دور, جس میں بالکل کچھ لوگ الگ الگ مسجدوں میں نماز عید ادا کرتے تھے. تو اس کے بعد اور بھی کچھ بیچ میں حالات کبھی بقرہ. ناظرین, کپواڑہ میں ایک 20 سالہ نوجوان جو اپنی بیچلر آف ویٹنری سائنس کی ڈگری حاصل کر رہا تھا, خیال کیا جاتا ہے کہ شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے کلگام علاقے میں ایک نالے میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا. حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 3 لڑکے آج دوپہر کلگام کے گاؤں میں ایک نالے کے اندر اس وقت غائب ہو گئے جب وہ نہا رہے تھے. ایسا ہوا کہ ایک مقررہ وقت کے بعد کل 3 میں سے 2 اپنا راستہ نکال کر بحفاظت باہر نکل آئے, تاہم ان میں سے ایک ابھی تک باہر نہیں آیا, جس کی وجہ سے یہ قیاس آریاں کی جا رہی تھیں کہ وہ ڈوب گیا ہوگا. نوجوان کی شناخت شاہد امین بیگ ولد محمد امین بیگ کے طور پر کرتے ہوئے حکام نے مزید کہا کہ وہ اپنی بیچلر آف ویٹنری سائنس کی ڈگری حاصل کر رہا تھا. ناظرین, چلیے ڈالتے ہیں ایک نظر پھر سے سرخیوں پر. مینڈر میں 2 کمسن لڑکیاں ہلاک اور ایک لڑکا بچا لیا گیا. دونوں بچیوں کی لاش کو برآمد کر کے کیا گیا اہل خانہ کی سپرد. ضلع اننت ناگ کے بج باڑہ میں کووڈ کی مہاماری کے بعد عید کی نماز خوش اسلوبی کے ساتھ کی گئی ادا. نماز کے اہتمام کے بعد لوگوں نے جوش و خروش سے ایک دوسرے کا کیا استقبال. ایل جی جموں کشمیر منوج سینا نے پہلگام ایک بیس کیمپ کا کیا دورہ. امرناتھ یاترا کے لوگوں اور دیگر یاتریوں سے کی ملاقات. امرناتھ یاترا میں ہوئے حادثات کو لے کر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس منعقد. درگاہ حضرت بال میں ہزاروں زائرین کے ساتھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ اور درخشاں اندرابی نے نماز ادا کی. پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں میں بھی عید الاضحیٰ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. پونچھ راجوری میں بھی موسم خراب کے باعث مساجدوں میں ادا کی گئی عید الاضحیٰ. ناظرین, فی الحال خبروں میں اتنا ہی. ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے 4 TV نیوز خبر کشمیر. اللہ حافظ.